Morning dear students, welcome to class of social science. So in your previous class we have covered two topics. The first one is federalism and its features, and other was difference between the federal government and the unitary government. So students, today we will cover other topic, that is coming together federation and holding together federation. Coming, as you can justify by its word, coming means आना, means जहाँ पर under this the independent states come together on their own to form a bigger unit, means जहाँ पर states खुद अपने आप आए bigger unit form करने के लिए. जैसे we can explain it with the help of a diagram, means here these are the states. These states come together by on their own. All have equal parts. These all states have equal parts. They come by their own to form a central unit as USA, Switzerland. USA means, by this name we can justify United. USA means United States of America, means यूनाइटेड मतलब यूनियन ऑफ विच स्टेट्स. जब यूनियन ऑफ स्टेट्स बन गई तो क्या बन गया? यूएस, अमेरिका. तो इनकी फुल फॉर्म क्या हो गई? यूएसए, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन दैट इज डिफरेंट. इन दिस अ लार्ज कंट्री decides to divide its power between central government and its constituent units. Explain with the help of example. Means here central government is powerful. Here central government powerful and it divides its powers to the state. यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, कंट्री है, वी कैन से इट कंट्री, और कंट्री ने अपनी पार्ट्स कुछ स्टेट्स को दे रखी है, और उन स्टेट्स को इसलिए पार्ट दे रखी है ताकि वो थोड़ा सा वक्त आसानी से कर सकें. और स्टेट्स जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब स्टेट्स को होल्ड करके चलती है. यहाँ पर स्टेट्स की इक्वल पार्ट्स है कमिंग टुगेदर में, ऑल आर इक्वल, बट इन होल्डिंग टुगेदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावरफुल. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, मीन्स mainly decision is taken by the central government. Like in India, India is a diverse country. Have you seen that? In India there are a large number of people live here who belong to different castes, religion, creed. So India has divided its part to the state. दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर स्टेट्स आती हैं, स्टेट्स हैं तो सेंट्रल बन रही है गवर्नमेंट, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल है तो स्टेट्स बनी है. तो दैट इज द मेन डिफरेंस. यहाँ पर स्टेट्स खुद आ रही हैं और यहाँ पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया, उसकी पावर को डिवाइड किया गया कंट्री ने. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. In previous lecture, we learned about the federalism and its features. So there is a little difference between the two questions. What is federalism and its features, and what makes India a federal country? So we will cover first point, that is three-tier system. Three-tier system means, number one point है ये आपका, three-tier system means India has divided its power into union government, state government, local government. Union means we can say that central government, जहाँ पर all over India के लिए डिसीजन लिया जाता है. State government means जो मेनली स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स अपने स्टेट के लिए उसके वेलफेयर के लिए डिसीजन लेती हैं. लोकल गवर्नमेंट मीन्स वी कैन से दैट पंचायत, ग्राम पंचायत, जहाँ लोकल लेवल पर डिसीजन लिया जाता है. तो फर्स्ट इज three-tier system, and the second, each tier has its own jurisdiction specified in constitution. हर टियर की अपनी अपनी एक जुरिडिक्शन है, अपना अपना एक एरिया है, जो एरिया जिस लेवल पर उन्होंने डिसीजन लेना है, जिस लेवल पर उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना है, टैक्सेशन करना है, लेजिस्लेचर मीन्स कानून बनाना है, सब कुछ डिसाइड किया गया है
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सब कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ज़्यादा अपनी पावर से ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। सो थर्ड पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स मीन्स गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड पावर्स मीन्स हम यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो here are three parts means union list, state list and concurrent list, and number 1 is also residuary list, but these three are the main. Okay, so first of all I will tell you about the union list. Union list means जहां पर which includes subject of national importance, means जहां पर वो subjects means we can say that issues, वो इश्यूज लिए जाते हैं जो पूरे नेशन के लिए यूनिफॉर्मिटी से अप्लाई होते हैं, जो पूरे नेशन पर एप्लीकेबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट में। जैसे डिफेंस है, डिफेंस मीन्स पूरी कंट्री के डिफेंस के बारे में बात करेंगे हम। बैंकिंग है, बैंकिंग में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो ऑल ओवर इंडिया चेंजेस होंगे। ये नहीं है कि एक स्टेट में कुछ और बैंकिंग रूल्स चल रहे हैं, दूसरी स्टेट में गए तो कुछ और बैंकिंग रूल्स चल रहे हैं। ऐसे इन द सेम वे इन कम्युनिकेशन, ये कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें अगर डिसीजन लिया जाता है तो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होते हैं यूनिफॉर्मिटी से। यहाँ पर है ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, वही सिर्फ इसके ऊपर लॉज बना सकती है। और कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके? 97। एंड अदर वन इज योर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मीन्स स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर वो टॉपिक आते हैं जो स्टेट के लिए या लोकल के लिए जरूरी हैं, वो इश्यूज आते हैं जहाँ पर लोकल और स्टेट के लिए हम रूल्स बनाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे पुलिस, ट्रेड और इरिगेशन। ट्रेड करना है किसी कंट्री में, किसी चीज का ट्रेड हो रहा है किसी स्टेट में, तो वहां पर ट्रेड के जो रूल्स बनेंगे, हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगी। इरिगेशन फैसिलिटीज है, कहीं पर ज्यादा पानी की जरूरत है, कहीं पर कम पानी की जरूरत है, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग वहां पर रूल्स बनाएगी। यहाँ पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 66 सब्जेक्ट्स। नाउ थर्ड वन इज दिस लिस्ट इंक्लूड्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए दोनों गवर्नमेंट पर अप्लाई होते हैं, मतलब कॉमन इंटरेस्ट हो गए। जैसे एजुकेशन है, चाहे वो स्टेट है, सीबीएसई जैसे आईसीएसई बोर्ड है, तो अगर उनमें कोई भी चेंजेस हो गए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम लेवल पर डिसीजन मिलेगा और स्टेट पर भी। मैरिज है, मैरिज का कुछ होगा, स्टेट पे भी वही अप्लाई होगा और पूरी कंट्री पर भी वही अप्लाई होगा। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें हम सेंट्रल और स्टेट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, दोनों में ही उसमें कुछ भी चेंजेस हुए हैं, कोई भी रूल बना है, कोई भी अमेंडमेंट हुई है, वो दोनों पर एप्लीकेबल होती है। यहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोनों गवर्नमेंट में कहीं कंफ्लिक्ट हो जाता है कहीं भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिसीजन अप्लाई होगा, उसी का डिसीजन ही वैलिड होगा। इसमें सब्जेक्ट्स हैं 47। एंड लास्ट वन इज रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट वो होती है जब हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ये तीनों लिस्ट बनी थी, चाहे वो यूनियन लिस्ट है, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट है, चाहे वो स्टेट लिस्ट है। और रेसिड्यूरी लिस्ट जो थी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिपेंडेंस के बाद बनी है। तो इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं है। जैसे आईटी, पहले के टाइम पे फोन वगैरह नहीं होते थे, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट सिस्टम नहीं था, तो जो आईटी वाला सिस्टम आ रहा है वो हमारा आएगा कौन सी लिस्ट में? रेसिड्यूरी। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लिस्ट वी कैन से दैट यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड द रेसिड्यूरी लिस्ट. So students, that's all. This is your topic and you can cover next 2 points. We can say that dual objectives in this question also, which we have taken from the features of the federalism. और हम बोल सकते हैं consent of both level of government. This is your topic which we have completed. So students, have a good day.